صبح کی ٹھنڈی ہوا کائی وادی کے درختوں کو چھو رہی تھی۔ خیموں کے درمیان زندگی معمول پر تھی، عورتیں پانی بھر رہی تھیں، بچے کھیل رہے تھے اور مجاہد اپنے گھوڑوں کی تربیت میں مشغول تھے۔ مگر دور آسمان پر ایک عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے کوئی بڑی آفت قبیلے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اورحان اپنے باپ کے ساتھ فصیل پر کھڑا تھا۔ عثمان غازی نے پہاڑوں کے پار نظریں گاڑ رکھی تھیں۔ بیٹے، کبھی کبھی دشمن تلوار لے کر نہیں آتا، بلکہ دھوکے کی صورت میں آتا ہے۔ اورحان خاموش رہا، اس کے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ ابا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ عثمان غازی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے تمہارے دل میں یہ احساس اسی لیے تو ڈالا ہے تاکہ تم تیار رہو۔ مومن وہی ہے جسے خطرہ آنے سے پہلے نظر آ جائے۔ اسی لمحے ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا۔ سردار معظم، مغربی جنگل میں گھوڑوں کی تیز رفتار ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عثمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حکم دیا، سپاہ تیار کرو، یہ وقت آزمائش کا ہے۔ اورحان نے تلوار مضبوطی سے تھامی، اس کی سانسوں میں جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بازنطینی جاسوس کئی دنوں سے قائی قبیلے کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اورحان زخمی ہے اور قبیلہ ابھی مکمل بحالی پر نہیں پہنچا۔ ایک بازنطینی کمانڈر نے اپنے سپاہیوں سے کہا، آج عثمان کو اس کے ہی گھر میں شکست دیں گے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو سلطنتیں گر جاتی ہیں۔ انہوں نے رات کے پوشاک پہنے، گھوڑوں کے سموں پر کپڑا لپیٹا اور چھپ کر پیش قدمی شروع کر دی۔ قبیلے کی مسجد میں شیخ ادرون دعا کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں مگر دل حقیقت کو دیکھ رہا تھا۔ اے اللہ، تیرا لشکر آزمائش میں ہے، اگر دشمن قریب ہے تو ایمان کو مضبوط کر تاکہ ہر دل میں اللہ اکبر ہی تلوار بن جائے۔ دعا ختم ہوئی تو ہوا کا ایک جھونکا مسجد کے دروازے سے داخل ہوا۔ شیخ کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ آزمائش آ پہنچی ہے۔ وہ طاقت بھرے قدموں سے اورحان کے پاس پہنچے۔ بیٹے، تیرے کندھے پر زخم ہے مگر دل کا زخم سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آج تمہیں اپنی قوم کے دل کو بچانا ہے۔ اورحان نے سر جھکا کر کہا، شیخ، میرے لیے دعا کریں کہ میں خوف پر ایمان کی فتح ثابت کروں۔ شیخ ادرون نے ہاتھ اٹھائے۔ میں دیکھ رہا ہوں، نور تیرے آگے چل رہا ہے، ڈٹ کے کھڑا رہنا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ رات میں اپنے سائے قبیلے پر پھیلا دیے۔ سب سو رہے تھے مگر دشمن جاگ رہا تھا۔ دور سے گھوڑوں کے سموں کی آواز اب واضح ہونے لگی اور پھر اچانک آسمان آگ سے بھر گیا۔ اندھیرے سے درجنوں جلتی مشعلیں ابھریں۔ بازنطینی سپاہیوں نے نعرہ لگایا، کائی کو آج ختم کر دو۔ خواتین چیخیں، بچے دوڑے، خیموں کا کپڑا جلنے لگا، ہر طرف دھواں، آگ، خوف۔ اورحان نے جنگی نعرہ مارا، اللہ اکبر۔ اس نے زخمی کندھے کی پرواہ کیے بغیر گھوڑا دوڑایا۔ اس کی تلوار چاند کے سامنے چمکنے لگی۔ ایک دشمن اس پر حملہ کرنے آیا، اورحان نے بجلی کی طرح وار کیا۔ سپاہی زمین پر گرا، چیخ نکلی، خاموشی چھا گئی۔ اب اس کے ساتھ قائی جوانوں نے بھی للکار ماری، اللہ اکبر۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہل گئی، جنگ بھڑک اٹھی۔ بازنطینی کمانڈر نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے 2 گروہ بھیجے، ایک قبیلے میں آگ پھیلائے اور دوسرا سیدھا عثمان غازی کے خیمے کی طرف بڑھے۔ وہ جانتے تھے اگر عثمان گر گیا تو قائی قبیلہ گر جائے گا۔ اورحان نے دشمن کی چال کو بھانپ لیا۔ وہ چیخ کر بولا، ابا کے خیمے کی طرف، انہیں نقصان نہ پہنچنے دینا۔ جیسے ہی دشمن عثمان کے قریب پہنچا، اورحان تیز رفتار گھوڑے پر ہوا کی طرح ان کے درمیان آ گیا۔ کمانڈر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تمہاری تکلیف ظاہر ہے، یہ جنگ تمہارے لیے آخری ہوگی۔ اورحان نے مسکرا کر جواب دیا، غازی جب حق پر ہو تو اس کا ہر زخم اس کی طاقت ہوتا ہے۔ وہ آگ کے درمیان لڑ رہا تھا، کندھے سے خون بہہ رہا تھا مگر ہاتھ میں تلوار ایمان کے سبب بھاری نہیں تھی۔ ایک دشمن سپاہی نے اچانک پیچھے سے حملہ کیا۔ اورحان لڑکھڑایا، زمین پر گرا۔ دشمن کی تلوار سیدھی اس کے دل کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے آخری قوت جمع کر کے پکارا، یا اللہ مدد۔ شیخ ادرون کی آواز دور سے گونجی، اللہ تمہارے ساتھ ہے غازی، اٹھ کھڑا ہو۔ اورحان نے مٹی کو ہاتھ میں دبایا، جب تک یہ زمین باقی ہے، قائی باقی ہے۔
वो बिजली की तरह उठा। एक वार, दूसरा, दुश्मन पीछे हटने लगा। कमांडर चीखा, ये लड़का इंसान नहीं, ये जुनून है। आखिरकार बाज़ंतीनी फौज का हौसला टूट गया। वो पीछे हटने लगे, मशलें बुझने लगीं और काई की फतह का सूरज फिर से तुलू होने लगा। औरहान ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ऐ मेरे रब, तूने हमारी हिफाजत की, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। उस्मान गाजी उसके पास आए, जख्मी बेटे को सीने से लगाया। तूने आज सिर्फ कबीले को नहीं बचाया, तूने ईमान को बचाया है। औरहान आहिस्ता से बोला, अब्बा, ये तो इब्तिदा है, असल जंग अभी बाकी है। रात का अंधेरा काई कबीले के खेमों पर छा चुका था। हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। सिपाही खेमों के बाहर पहरा दे रहे थे, मगर उनके चेहरों पर बेचैनी थी। सब जानते थे दुश्मन ने पीछे हटकर सांस नहीं ली, वो वापस आएगा और पहले से ज्यादा ताकत के साथ आएगा। उस्मान गाजी ने कबीले के बड़े सरदारों को अपने खेमे में जमा किया। आग जल रही थी और खेमे में रोशनी फैला रही थी। सरदार एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ खौफ में, कुछ गुस्से में। उस्मान गाजी ने गहरी आवाज में कहा, दुश्मन हमें कमजोर समझ रहा है। हम उसे दिखाएंगे कि काई का दिल अब भी शेर जैसा है। सरदार गुंदूस खान ने मुक्का भेंचे, उस्मान, ये मामूली लड़ाई नहीं, दुश्मन हमारे अंदर घुस आया है। कोई है जो उनको हमारे कदमों की खबर देता है। खेमे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे। औरहान खामोश बैठा था, मगर उसकी आंखें सरदारों की हर हरकत परख रही थीं। एक अंदरूनी आग उसके दिल में धड़क रही थी। एक सरदार बुजुर्ग बैरक आहिस्ता से उठा और औरहान के सामने आ खड़ा हुआ। उस्मान साहब, ये नौजवान है, जज्बाती है। इसी ने दुश्मन के सिपा सलार को कत्ल नहीं किया। अगर वो जिंदा रहा तो दुश्मन बदला लेने आएगा। औरहान की आंखों में गुस्से की चमक आई। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदिल करूं, कत्ल नहीं, इंसाफ करूं। सरदार ने तंजिया हंसी हंसी, अदल या कमजोरी? सिपाह को नौजवानों के रहम पे छोड़ना ठीक है? माहौल गर्मा गया। उस्मान गाजी ने तलवार की नोक जमीन में गाड़ कर कहा, जो मेरे बेटे पर उंगली उठाए वो काई की तलवार पर उंगली उठाता है। बुजुर्ग खामोश हो गया, लेकिन औरहान ने महसूस किया कि कुछ और भी है, रश्क, हसद और शक। ये कश्मकश आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। मजलिस खत्म हुई। औरहान रात के पहर चौकसी करते सिपाहियों के दरमियान पहुंचा। उसी वक्त एक जख्मी सिपाही को लाया गया। कपड़े फटे हुए, सांस टूट रही थी। वो बामुश्किल बोला, सरदार, दरियाए सखारिया के पार दुश्मन बड़ी फौज जमा कर रहा है। और वो गिल पड़ा। औरहान ने उसे थाम लिया। सिपाही की मुट्ठी एक कागज पर सख्ती से बंद थी। जब उसे खोला तो अंदर एक नक्शा था, काई कबीले के खेमों की सिमतों के साथ। हम तुम्हारे अंदर से ही हमला करेंगे, वहीं से जहां तुम सबसे ज्यादा महफूज समझते हो। औरहान की रूह में एक सर्द लहर दौड़ गई। दुश्मन हमारे बीच है। इसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरे कबीले की हिफाजत फरमा। अचानक दूर से चीखें सुनाई दी। खेमों की कतार में आग भड़क उठी। बाज़ंतीनियों का हमला नहीं, ये तो एक खुफिया वार था। औरहान ने तलवार निकाली। काई के बहादुरों, औरतों और बच्चों की हिफाजत करो। खेमों के पीछे से नकाब पोश हमलावर निकल आए। उनका लिबास काई सिपाहियों जैसा था, धोखे का खेल। औरहान ने एक हमलावर को पकड़कर जमीन पर गिराया, चेहरे से कपड़ा खींचा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो काई का एक सिपाही था। औरहान, तू दुश्मन का गद्दार है? सिपाही ने सर्द लहजे में कहा, मैं कमजोर कबीले का हिस्सा नहीं,
बाज़ेंतीनी मुझे इज्जत देंगे। औरहान का खून खौल उठा, लेकिन उसने वार रोका। गाजी का वार नफरत से नहीं, अदल से होता है। गद्दार को कैद करवाया गया, लेकिन आग फैल चुकी थी। बच्चे और औरतें खौफ से चीख रहे थे, सिपाही जख्मी हो रहे थे। औरहान ने चीख कर कहा, सब मेरे पीछे आओ, जो अल्लाह के लिए आया है वो मेरे साथ लड़े। एक गद्दार ने छुपकर तीर चलाया। औरहान ने एक बच्चे को बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया। तीर सीधा उसके सीने की जिर्ह पर लगा। जिर्ह ने चोट को कम कर दिया, मगर झंझनाहट पूरे जिस्म में दौड़ गई। बच्चा रो रहा था। औरहान ने उसे सीने से लगाया। ना डरो बच्चे, काई के शेर कभी नहीं डरते। ये मंजर देखकर सिपाहियों के हौसले फिर से जाग उठे। उन्होंने नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और दुश्मन पीछे हटने लगा। आखिरकार गद्दारों को पकड़ लिया गया, मगर नुकसान बहुत हुआ था। हमले के बाद मुहाजिरीन के खेमे जले हुए, सिपाही थके हुए और कबीले में खौफ की लहर थी। बुजुर्ग दोबारा आया, आंखों में इल्जाम लिए। देख लो उस्मान साहब, ये सब इसलिए हुआ कि आपने दुश्मन को छोड़ा। आपके बेटे की गलती ने खून करवाया। और हान को लगा कि किसी ने उसके दिल पर तीर मारा हो। वो फट पड़ा। गाजी का फैसला उसूल पर होता है। अगर मैं कत्ल भी कर देता तो भी दुश्मन आता, मगर आज हमने सीख लिया कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। सरदार खामोश हो गए। उस्मान ने मजबूत लहजे में कहा, ईमान की जंग में गलती हो सकती है, मगर पीठ नहीं मोड़ी जाती। रात गहरी हो गई और हान तन्हा बैठा आग के शोलों को देख रहा था। उसके जहन में सवालों की तलवारें थीं। क्या वो वाकई क़ियादत के लायक है? क्या रहम दुश्मन लाता है? क्या सख्ती ईमान के खिलाफ है? उसी वक्त कोई उसके पीछे आया, शेख अदरून। वो धीरे से बोले, और हान, आज तुमने दुश्मन और खुद को पहचाना है। क़ियादत सिर्फ जीत नहीं, तहम्मुल, हिकमत और कुर्बानी है। जो अंदर के दुश्मन से लड़ ले, वही कौम का राहबर बनता है। और हान ने नजर उठाई, आंखों में अज़म था, मैं ना पीछे हटूंगा, ना थकूंगा, और जब तक अल्लाह का नाम जिंदा है, काई का परचम कभी नहीं झुकेगा। शेख अदरून ने मुस्कुरा कर कहा, और हान, ये जंग अभी शुरू हुई है, तूफान आ रहा है, और तुम इस तूफान के सामने डट कर खड़े रहोगे। रात की तारीकी अभी पूरी तरह छटी न थी। मशरिक में हल्की सफ़ेदी फैल रही थी, मगर काई किला के अंदर हर दिल में एक ही अंधेरा था, दुश्मन के वार का अंधेरा। ख़वातीन ज़ख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थीं, बच्चे अपनी माँओं के पीछे सहमे खड़े थे। सिपाही दीवारों पर निगरानी बढ़ा चुके थे। सबकी नज़रें दरवाजे की सिमत लगी थीं, जहां दुश्मन का मुमकिना हमला दोबारा हो सकता था। इसी लम्हे अलाउद्दीन गाजी घोड़े की बाग थामे आहिस्ता आहिस्ता किले में दाखिल हुए। लिबास पर खून लगा था, मगर वो मुस्कुरा रहे थे। अलाउद्दीन, सिपाह जिंदा है और ईमान सलामत, दुश्मन हमें तोड़ नहीं सकता। उस्मान गाजी आगे बढ़े, मेरे शेर बेटे, तू खुदा की अमान में था। अलाउद्दीन ने सजदाए शुक्र अदा किया, फिर बोले, बाबा, ये हमला आखिरी नहीं, इब्तिदा है। दुश्मन जान चुका है कि काई फिर से उठ रहा है। फसील के ऊपर से एक नजर पड़ी और एक सिपाही ने चीख कर ऐलान किया, ओरहान बे वापस आ गए। कबीले के लोग दौड़कर दरवाजे की तरफ पहुंचे। ओरहान के साथ कुछ जख्मी सिपाही थे। उनके चेहरे पर जंग की थकन और आंखों में आग थी। उस्मान